Hello everyone, praise the Lord, Sabku Jayeshu. I hope all are fine and well. Today we are going to talk about God's favor on our life. आज हम लोग ईश्वर के फेवर के बारे में बात करेंगे। यानी ईश्वर का फेवर जब हमारे ऊपर होता है तो हमें क्या मिलता है। फेवर का मतलब होता है ईश्वर की स्वीकृति। If God's favor is resting on your life, then you are truly a blessed person. यानी अगर ईश्वर का फेवर है आपके ऊपर तो आप एक बहुत ही ब्लेसिड पर्सन हैं, बहुत ही धर्मी व्यक्ति हैं। Now what is favor? Favor means the approval of God. अगर ईश्वर ने आपको अप्रूवल दे दिया है तो मनुष्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. So it is very essential that we should have God's favor resting on our lives. In God's eye, all people are equal. ईश्वर की निगाह में सब लोग बराबर हैं. God loves everyone equally. God loves both sinners and the righteous. यानी ईश्वर को धर्मी से और पापी से बेहद मोहब्बत है. ईश्वर की निगाह में सब बराबर हैं. God loves everyone equally. But there are certain people in this world who are able to win God's favor by their conduct. लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा ईश्वर का अप्रूवल अपनी लाइफ पर बना देते हैं. It is because of their good behavior they are able to win the favor of God, and God's favor is always resting on their lives. So our conduct should be pleasing to God. यानी हमारा कंडक्ट, हमारा व्यवहार, बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि हम ईश्वर को हमेशा खुश रखें ताकि उनका फेवर हमेशा हम पर बना रहे. वी शुड लीड अ वेरी स्पिरिचुअल लाइफ. वी शुड लीड अ होली लाइफ. यानी हमें एक धर्मी जीवन जीना चाहिए. वी शुड बी वेरी गॉड फियरिंग. वी शुड लीड अ प्रेयरफुल लाइफ. एंड एट द सेम टाइम वी मस्ट बिहेव प्रॉपरली विद एवरीवन. वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली. We should be helpful, kind-hearted, compassionate, loving, so that God's favor rests on us and people's favor also rests on us. यानी जब हमारा एटीट्यूड गॉड की तरफ और इंसान की तरफ बहुत अच्छा होता है तब ईश्वर का फेवर यानी उनका अप्रूवल हमारे ऊपर रेस्ट करता है. और जब गॉड हमें अप्रूवल दे देते हैं तो कोई भी इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर अबाउट मदर मैरी. अगर आप लूका की किताब चैप्टर 1 verse 28 में देखें, in the book of Luke chapter 1 verse 28, Mother Mary was found to be a highly favored woman. यानी यहाँ पे एंजल गैब्रियल मदर मेरी के पास आता है और उनसे बोलता है, Hail Mary, full of grace, you are truly favored among all men. That means you are found to be favored in the eyes of God. और मदर मेरी को हमेशा से ही गॉड ने एक ब्लेसिड वुमन कहा है, एक फेवर्ड वुमन माना है. And she was found to be favored among all the women on this earth. She was found to be blessed among all the women of this earth because God's favor was resting on her life, because she was found to be a very spiritual person. When God's favor is resting on her life, that if anything come against us, God is going to change it for us. अगर God का फेवर, उनका अनुग्रह हम पे रेस्ट करता है, अगर God का अप्रूवल हमारे ऊपर है तो कोई भी चीज़ हमारे खिलाफ आएगी, गॉड उसे हमारे फेवर में बदल देंगे. If God's favor, His approval is resting on our life, no matter how situation is bad around us, God is going to change things for us if His favor is resting on us. No matter what the enemy may do, God will turn things into your favor. No matter the world is against you, no matter the people are against you, no matter the devil is against you, but if you are having God's favor on your life, you will see positive things happening around you. यानी जो चीज़ें हमें हार्म करने के लिए आती है, चाहे वो शैतान है, वो डेविल है, या वो लोग हैं, वो इंसान है, पीपल है, कोई भी है, हमारे आसपास जितनी भी खराब सिचुएशन आएगी, गॉड उसे हमारे फेवर में बदल देंगे अगर उनका अप्रूवल हमारी लाइफ के ऊपर है. द वेरी थिंग्स दैट कम टू हार्म अस, गॉड इज गोइंग टू चेंज देम फॉर आवर गुड. नाउ समटाइम्स पीपल दे डू अटैक अस. They will do all kind of wrong things against us. They will come against us from all sides. कई बार हमारे जो दुश्मन होते हैं चारों तरफ से हमारे अगेंस्ट आते हैं. They will bring a bad name to you. They will persecute us. कई बार लोग हमारा नाम खराब करने की कोशिश करते हैं. They try to spoil our image. They try to spoil our name. They try to persecute us. But God knows how to turn every evil situation into good. यानी वहीं पर उस स्थान पर जो चीज़ें आपके आसपास खराब दिखती हैं, गॉड उन्हें हमारे फेवर में बदलते हैं. I would like to mention here about the example of Joseph from the book of Genesis chapter 41. अगर आप जेनेसिस की बुक देखें चैप्टर 41, वहाँ लिखा है, यूसुफ नाम का एक लड़का होता है, उसके भाई उसे बेच देते हैं इजिप्ट में गुलाम बना के. और फिर वहाँ वो जब इजिप्ट पहुँचता है तो वहाँ की रानी उस पर फॉल्स एलिगेशंस लगाती है, उस जेल हो जाती है, वो प्रिजन तक पहुँच जाता है. वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, उसे लगता है सब उसके खिलाफ हैं. उसको लगता है इजिप्ट की रानी उसके खिलाफ है, इजिप्शियंस उसके खिलाफ हैं, उसके भाई उसके खिलाफ हैं. तो ये एक ऐसा पॉइंट उसके लाइफ में आता है जब वो बहुत डाउन फील करता है.
But that very area, in that prison, God started blessing him. God started turning things in his favor. उसी जगह पे जहाँ वो सबसे ज़्यादा अपने लोएस्ट पॉइंट पे जाता है, वहाँ गॉड उसको ब्लेस करते हैं. गॉड उसके साथ बातें करते हैं ड्रीम्स के थ्रू. गॉड स्टार्टेड शोइंग हिम ड्रीम्स एंड ही स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग ड्रीम्स. और उसी के द्वारा उसे फेवर मिलता है किंग की निगाह में. जब किंग को पता चलता है कि वो ड्रीम्स को इंटरप्रेट करता है, देन किंग मेड हिम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट. सो गॉड नॉट ओनली फेवर्ड जोसेफ बट ही आस्क्ड द किंग टू फेवर हिम. यानी कई बार हमें ईश्वर खुद फेवर करते हैं, कई बार हमें किसी और के द्वारा वो फेवर दिलवाते हैं. दैट इज कॉल्ड द अप्रूवल ऑफ गॉड. इफ गॉड्स अप्रूवल इज रेस्टिंग ऑन आवर लाइव्स, नॉट ओनली गॉड विल फेवर अस बट even he will ask people to favor us. Now this reminds me of David also. अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में देखें फर्स्ट सैमुअल की किताब में जो चैप्टर 24 है, उसमें लिखा है कैसे सॉल जो था इज़राइल का राजा, वो दाऊद को हमेशा परेशान करता था क्योंकि उसको मालूम था उसके बाद दाऊद वहाँ का राजा बनने वाला है इज़राइल का. तो वो डेविड को परस्यू करता है. सॉल वांटेड टू किल डेविड बिकॉज ही न्यू दैट ही विल बी द नेक्स्ट किंग इज इन इज़राइल. तो डेविड उससे छुपता फिरता है, कभी वो पहाड़ों में जाता है, कभी वो केव्स में जाता है. डेविड केप्ट ऑन फ्लीइंग फ्रॉम सॉल सो दैट ही वुड नॉट किल हिम. तो वहीं पे जाके जब वो गुफाओं में छिप जाता है, वो डेविड की लाइफ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट था. वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो लो फील करता है क्योंकि इज़राइल का राजा उसके खिलाफ था, इज़राइल की आर्मी उसके खिलाफ हो जाती है, सब लोग उसे मारना चाहते हैं, उसे लगता है सब कुछ उसके अगेंस्ट जा रहा है. इन दैट वेरी एरिया गॉड स्टार्टेड ब्लेसिंग हिम. वहाँ पे डेविड गॉड के साथ प्रेयर्स करता है और उसने लिख डाली पूरी साम्स की किताब. जब वो अपने लोएस्ट लाइफ में लोएस्ट लेवल में था, ही रोट द एंटायर बुक ऑफ साम्स. और वहाँ उसने अपनी कंडीशन लिखी है कि कैसे अपनी लाइफ के लिए वो बचता फिरता है सॉल से. इन दैट वेरी एरिया, इन दैट वेरी सिचुएशन, व्हेन एवरीथिंग वाज अगेंस्ट हिम, गॉड स्टार्टेड ब्लेसिंग डेविड. गॉड ने डेविड को वहीं से ब्लेस करना शुरू किया, उसे केव में बचा के रखा बहुत सालों तक, जब तक वो इज़राइल का राजा नहीं बन गया. बिकॉज गॉड हैज़ ऑलरेडी अनॉइंटेड हिम इन हिज चाइल्डहुड. क्योंकि बचपन में ही गॉड ने उसको अनॉइंट कर दिया था, उसे बहुत साल गॉड ने उन केव्स में बचा के रखा ताकि आगे चल के वो इज़राइल का राजा बन सके. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट इफ you find all things against you, God has got the power to change very those bad situations in your favor. This reminds me of Paul. Paul जो था, he was the one of the apostles of Christ. और Paul जो था शुरू में वो रोमन सोल्जर था और उसका काम था लोगों को परसिक्यूट करना. He was deadly against Christianity. He was persecuting men and women who were preaching Christianity. और पॉल एक ऐसा इंसान था जो ईसाई धर्म के खिलाफ था और वो लोगों को पकड़ के जेल में डालता था जो ईसाई धर्म को प्रीच करते थे. और जितने भी जीसस के चेले थे, डिसाइपल्स थे, सबको पॉल से डर लगता था. उनको लगता था कि कभी भी उनके आके मार देगा, कभी भी जेल में डाल देगा. गॉड यूज दैट वेरी सिचुएशन टू सेव द क्रिश्चियंस ऑफ दैट टाइम. यानी जो सॉल जो पॉलुस था, जब वो लोगों को मारता था तो गॉड ने उसको अपने दर्शन दिए और उसी की लाइफ को चेंज कर दिया. एंड ही इज़ द वेरी सेम पर्सन हु वाज परसिक्यूटिंग क्रिश्चियनिटी. ही हिमसेल्फ स्टार्टेड प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी. वी फाइंड दिस इन एक्ट्स 9 चैप्टर 9 में, एक्ट्स की किताब में वर्सेस 1 to 19 में लिखा है कि कैसे जीसस उसके सामने अपीयर होते हैं और वही इंसान जो क्रिश्चियनिटी को परसिक्यूट कर रहा था उसी को जीसस बदल देते हैं और वही क्रिश्चियनिटी का प्रीचर बन जाता है. एट अ टाइम द पर्सन हु वाज अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट, ही स्टार्टेड प्रीचिंग वेरी दोज टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट. दिस इज़ द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट. यानी ये यीशु मसीह की पावर है कि जो चीज़ें हमारे खिलाफ आती हैं उन्हें वो कैसे हमारे फेवर में बदलते हैं. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द स्टोरी ऑफ मोसेस. यानी मोसेस एक हिब्रू बच्चा था और उस टाइम पे इजिप्ट में फ़ारो वहाँ का किंग था, वो हिब्रू बच्चों को मरवाता है. तो फ़ारो की जो बेटी होती है वो उसे उठा के ले आती है मूसा को और अपने घर में पालती है. और जबकि ये सब फ़ारो को पता नहीं होता कि उसी के घर में एक हिब्रू बच्चा पल रहा है. नाउ दिस इज़ ऑल अ मिरेकल ऑफ गॉड. ये गॉड का एक मिरेकल था कि बाकी हिब्रू बच्चे उस टाइम मर जाते हैं और उसी फ़ारो के घर में पलता है एक हिब्रू बच्चा जो आगे जाके बनता है प्रॉफिट मोसेस. और आगे चल के मोसेस एक इजिप्शियन का मर्डर कर देता है. तो फ़ारो उसकी जान लेना चाहता है क्योंकि उसने इजिप्शियन को मारा था. देन मोसेस फ्लीज टू डेजर्ट. मोसेस जाके डेजर्ट में छिप जाता है और वहाँ वो अपने लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट देखता है. जब वो इजिप्ट से भाग के जाता है तो उसे लगता है सब कुछ फिनिश हो गया. ही लॉस्ट हिज कंट्री, लॉस्ट हिज पीपल, ही स्टार्टेड लिविंग इन डेजर्ट. और वहीं पे गॉड उसको ब्लेस करते हैं और उसे तैयार करते हैं प्रॉफिट बनने के लिए. गॉड केप्ट हिम इन दैट डेजर्ट फॉर 40 years. And God started blessing him in that very area. He was in isolation. और गॉड सारी चीज़ें उसके फेवर में बदल देते हैं. जो चीज़ें उसके खिलाफ आती हैं गॉड कैसे कैसे उसके फेवर में टर्न करते हैं और एक दिन वो इतना बड़ा प्रॉफिट बनता है. He goes back to his people Israelites and he saved them from Egypt.
और वो उनको मिस्र से बाहर निकाल के लाता है और इसराइलाइट्स की जान बचाता है। यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगी एक सैम्पल जेनेसिस की बुक में से, चैप्टर 3 में से, जहाँ डेविल फोर्स करता है एडम और ईव को फ्रूट खाने के लिए, फॉरबिडन फ्रूट। और जब वो फ्रूट खाते हैं तो उसे लगता है कि उन्होंने गॉड को डिसोबे कर दिया, अब एक एनिमिटी हो जाएगी गॉड की और इंसानियत के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दीज वेरी थिंग्स दैट came against Adam and Eve, God turned them in their favor by blessing Adam and Eve। यानी गॉड ने एडम ईव को पनिश नहीं करा, उनको हेल में नहीं फेंका, उनको जान से नहीं मारा, बल्कि गॉड ने उसी सिचुएशन को यूज़ किया पूरी ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए, बाय सेंडिंग हिज सन जीसस इन दिस वर्ल्ड। ही मेड अ प्लान ऑफ साल्वेशन फॉर द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि उस टाइम पर आया था सिन ह्यूमैनिटी में, इस दुनिया में सिन ने एंटर करा था एडम और ईव के थ्रू, और गॉड ने उसी सिचुएशन को यूज़ करा इंसानियत को बचाने के लिए, सबको साल्वेशन देने के लिए। गॉड कैन चेंज एनीथिंग दैट इज कमिंग अगेंस्ट अस इनटू फॉर अस। द एनिमी विल ट्राई हिज हार्ड टू हार्म यू, यानी आपको जो भी दुश्मन है ही विल ट्राई हिज बेस्ट to bring all kind of harm against you, but God knows how to turn every evil into good, and God can break good out of every evil situation that will come against you. By doing this, God brings glory to his name। यानी जो भी बुरी सिचुएशन हमारे खिलाफ आती है, ईश्वर उसी को यूज़ करते हैं हमें ब्लेस करने के लिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और ताकि इंसानियत को मिले साल्वेशन। Even if people are not willing to help you, God will ask them to help you। कई बार लोग हमारी हेल्प नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ईश्वर उनके दिल में डालेगा कि आप उसकी हेल्प करें। Sometimes people will not try to favor you, but God will ask them to favor you। God will force people to favor you। God will force people to help you। This is how God changes the hearts of people to bring situations in your favor। गॉड में इवन ब्रेक द रूल्स ऑफ नेचर, यानी ईश्वर कई बार नेचर के भी रूल्स बदल देते हैं। वी फाइंड दिस इन एक्सोडस 14 वेयर वी सी द पार्टिंग ऑफ द रेड सी। एक्सोडस 14 में, निर्गम की बुक चैप्टर 14 में लिखा है कैसे गॉड ने लाल समुद्र के 2 टुकड़े कर दिए थे, कैसे समुद्र का विभाजन किया था। ये एक ऐसा एग्जाम्पल था कि ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि समुद्र के 2 टुकड़े हो जाए, कभी भी किसी इंसान ने विटनेस नहीं करा। दिस वॉज द फर्स्ट एंड द वेरी लास्ट इवेंट that was witnessed by humanity where God parted the Red Sea। ऐसा इवेंट कभी भी हिस्ट्री में विटनेस नहीं किया गया कि समुद्र के 2 टुकड़े हो गए, और गॉड ने इसराइलेट को बचाने के लिए इजिप्शियन से समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था, और जब इजिप्शियन आर्मी उसी समुद्र में आती है तो समुद्र ने उन्हें कवर कर लिया था। यू नो, गॉड कैन इवन चेंज द कोर्स ऑफ नेचर टू सेव हिज ओन पीपल। अनदर एग्जाम्पल इज गिवन इन जोशुआ चैप्टर 10। अगर हम योशू की बुक देखें चैप्टर 10 में, वहाँ भी ये लिखा है कि एमोराइट्स की आर्मी आती है इजराइलिट्स को अटैक करने के लिए। उस टाइम पे इजराइल का लीडर था जोशुआ, और जोशुआ सारे लोगों के आगे गॉड से प्रेयर करता है कि सूरज जो है वो थम जाए, वो रुक जाए, और रात ना हो जब तक कि इजराइलिट्स एक एक एमोराइट को मार ना दें। यू नो, देयर वाज अ बैटल बिटवीन एमोराइट्स एंड इजराइलिट्स, एंड जोशुआ मेड अ प्रेयर टू गॉड इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल दैट द सन शुड स्टैंड स्टिल अनलेस द वॉर गेट्स ओवर। यानी जोशुआ ने प्रेयर करी कि सूरज जो है वो थम जाए जब तक कि पूरी बैटल ख़त्म नहीं होती, और जब तक इजराइलाइट अपने एक एक एनिमी को नहीं मारता। और ठीक वैसा ही हुआ था, सूरज जो था वो थम गया था 24 घंटे के लिए। फॉर 24 आवर्स देयर वॉज नो नाइट एंड द सन स्टूड स्टिल एंड द बैटल केप्ट ऑन गोइंग ऑन एंड इजराइलाइट किल ऑल द एनिमीज। यानी सूरज जो था उसकी स्पीड रुक गई थी, वो थम गया था, वो डूबा नहीं जब तक इजराइलाइट्स ने अपने एक एक एनिमी को नहीं मारा। दिस इज़ द पावर ऑफ गॉड। He can even change the course of nature to save his own people। Another example I would like to share from the book of Mark chapter 4। यहाँ के बताया गया है कि कैसे डिसाइपल्स नाव में जा रहे होते हैं, वो सो जाते हैं और एकदम से तूफान आता है, वो डर जाते हैं, तो ईश्वर से कहते हैं कि क्या तू नहीं देखता कि हम डूबे जा रहे हैं? तो जीसस उस टाइम उठते हैं और एकदम से वो समुद्र को गुस्सा करते हैं। He rebukes the wind and the waves and immediately everything calmed down। यानी जीसस rebukes the wind and the storm calmed down। This was another example where God changed the course of nature to save his disciples। यानी ईश्वर ने एक वचन दिया और एकदम से वेव्स और जो स्टॉर्म था वो थम गया था। और देन जीसस उसके बाद अपने डिसाइपल्स को रिव्यू करते हैं, वो कहते हैं कि तुम डरे क्यों, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ बोट में था। यानी जीसस उनसे कहते हैं कि अगर मैं आपकी बोट में नहीं होता तब आपको डरना चाहिए था, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ था, तो फिर तुम डरे क्यों। Similar things happens with us when we face the storms of our life। Even we sometimes forget God and we are frightened। हमारे साथ भी ऐसे होता है जब अपनी ज़िंदगी में हम स्टॉर्म्स को देखते हैं, मुसीबतों को देखते हैं, तो हम डर जाते हैं और भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। बट गॉड नेवर लीव्स अस, ही नेवर forsake us। God is always with us because Jesus has promised that I am with you until the end of age।
इफ गॉड इज फॉर अस देन हु कैन बी अगेंस्ट अस, ऐसा रोमन्स 8:31 में लिखा है कि यानी ईश्वर अगर हमारे साथ है तो मनुष्य हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. इफ गॉड इज ऑन योर साइड, इफ गॉड्स फेवर इज रेस्टिंग ऑन योर लाइफ, देन नो वन कैन हार्म यू. All things work together for the good of those who have been called according to his purpose. ऐसा रोमन्स 8:28 में लिखा है कि सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं उन लोगों के लिए जो ईश्वर के बुलाए गए हैं. Which means God will turn everything into your favor if his approval is resting on your life. So if you want to have blessings in your life today, then you must have a right attitude towards God and towards men. You should have a prayerful attitude, be spiritual in your life so that God's favor can rest on your life. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we pray for everyone who's watching this video. Father God, bless everyone abundantly. Father God, we thank you for all the gifts that you have given us. We pray that your favor is going to rest on everybody's life, that you're going to give them the assurance that your favor rests on them, that you will bless them according to the desires of their heart, that you're going to fulfill all their plans and dreams. We pray for all those who are facing sickness. Enable them to come out of all their sickness and troubles. Father God, bless them with the gifts of Holy Spirit. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ our Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. And always remember that God's favor is resting on your life and no situation can harm you. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye-bye.